5 simple steps to stop hair fall, and that is our intention for today's webinar. And our mission is that hair issues are very common these days, and still it shakes the confidence of the person and affect the self-image of the person. So with little care and attention, it can be reduced to great extent. And thanks to social media, that we can talk with you directly through Zoom. And our mission is to empower you with the hair so that you can regain your confidence and self-image. And we want to reach to 1 lakh people by the end of this year 2020. And this was the goal that we decided on 1st Jan 2020. And if I tell you the good news, in last month we had 5,000 subscribers, and we have reached to now 6,000 subscribers on YouTube already. So thank you so much. Now, the context of this cosmetic hair care mastermind is that 5 common mistakes that we are going to discuss. And the 5 common hair care mistakes that most of us are making unknowingly. And there are 5 hair conditions where you should visit an hair care expert. And the 5 simple steps that, just 1 second, what is happening? Okay. Just 1 second. Okay, so the 5 simple steps that can prevent our hair fall. So we will be discussing that also. Now, which topic you want me to take next? So please think about it, and I will be asking again after the session as well. Now, who am I? I'm Dr. Munish Sharma, and I'm an MBBS, Diploma in Skin Aesthetics, CIDESCO, and hair care expert working since 2007. Thank you, Rahul, for joining in. And your hair would need attention if you have dry hair, rough hair, thin hair, patchy hair, or if you have split ends, hair fall, gray hair, or if you are confused which hairstyle and beard style and mustache style is suitable in the lockdown. So then definitely your hair would need attention. Now, what is a normal hair? So normal hair is basically shiny in nature, and while the damaged hair is dull looking hair. So this is the diagrammatic representation where I have shown you the hair follicle, and there is a sebaceous gland. So sebaceous gland means the hair has its natural moisturizer, hair has its natural oil. So that is why hair is shiny in nature. Moving on to the next slide. Now there are 5 common mistakes that most of the people make. Now let's see what are the common mistakes. The first mistake is that they take hot shower. If you are one of them, please type yes. That is me. अगर आप hot shower लेते हैं, type करें me. And if you are not taking hot shower, type करें no. Just 1 second. And the second mistake is people do keep hair wet after bathing. If you are the one, please type in yes. Okay, please type yes if you keep your hair wet after bathing. Thank you. The next mistake most of the people make is tightly braids your hair. मतलब चोटी को काफी tightly बांधते हैं. If you are the one, type yes. Rahul, can you hear me? Please type in. Please check your settings. Please check your setting. I think you will be able to hear. And the next mistake is we eat processed food most of the time. So if you are the one who is eating processed food, please type in yes. And the last mistake that most of us make is we put our hair through hot styling tools and colors and chemicals. So if you are the one who is putting your hair through hair styling tools or play with colors, then type in yes. So shall we move ahead? Is that okay? Okay. If you can hear me, I think there is some sound issue. Dr. Komal, can you hear me? Rahul, can you hear me? If you can hear me, please type in yes. There are
many participants now. Rahul, Smita, uh, Tribhuvan, if you can hear me, please type in yes. Galaxy J7 Pro, if you can hear me, please type in yes. Thank you, Smita, for replying. Galaxy J7 Pro, if you can hear me, Tribhuvan, thank you so much. Anybody else? Tribhuvan, if you can hear me, please type in yes. Okay, almost everyone can hear me. So if you are the one who is taking hot shower, तो let me tell you कि hot shower से होता क्या है. तो hot shower लेने से होता क्या है कि बालों का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं. और जब बाल ड्राई, ब्रिटल एंड थिन होते हैं तो इट टेक्स टू द हेयर फॉल. सो दैट इज अ कॉमन रीजन जिसमें हेयर फॉल क्यों होता है, हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से. नेक्स्ट इज हेयर वेट आफ्टर बाथिंग. अगर आप अपने बालों को गीला रखते हैं बाल धोने के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जो गीले बाल होते हैं वो ससेप्टिबल टू डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनका टूटना बड़ा आसान हो जाता है. जैसे हम टॉवल के साथ खींचते हैं तो काफी सारे बाल इतने पॉइंट तक खिंच जाते हैं कि ब्रेक पॉइंट तक आ जाते हैं. इसके साथ साथ हेयर रूट को भी डैमेज होता है और उसकी वजह से फ्रीजीनेस होती है बालों में और बालों में स्प्लिट एंड होने शुरू हो जाते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी इज टाइटली ब्रेड्स योर हेयर. अगर आप बालों को टाइट बांधते हैं और टाइटली पुल करके रखते हैं अपने बालों को, तो भी आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है. तो उसमें क्या होगा कि आपके बाल पैची हो जाएंगे, किसी किसी जगह पे बाल है और जहां पर आपका पुल ज्यादा है चोटी बांधने के टाइम पे, तो वहां पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं. अगर आप काफी प्रोसेस्ड फूड या ऑयली फूड खाते हैं तो डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट होता है ऑयली फूड में. अब उसमें होता क्या है कि जब आप सैचुरेटेड फूड खाते हैं और आज के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, और अगर लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है. तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो जो हमने सैचुरेटेड फैट खाया है उसका डाइजेशन भी होना थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसलिए लॉकडाउन के टाइम में स्पेशली अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड को खाना, और इसके साथ साथ आप शिफ्ट करें दूसरे फूड की तरफ, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. कितने सारे लोग हैं जो अपने बालों में हॉट हेयर स्टाइलिंग टूल्स या फिर दे प्ले विद कलर्स एंड केमिकल्स. तो अभी हेयर केमिकल्स में क्या होता है कि उसमें सल्फर या तो अमोनिया होता है जो बालों के लिए बहुत ज्यादा डैमेज करता है. इवन स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग में भी डैमेज होता है बालों को. और जो हॉट हेयर स्टाइलिंग टूल्स होते हैं जैसे कि आयनिंग जो करते हैं बालों में, तो उसमें वो बालों को ड्राई बहुत ज्यादा करता है. और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ड्राई बाल होने की वजह से आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं और उनमें टूटने का चांस बढ़ जाता है. अब हॉट शावर अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, प्लीज टाइप इन यस, क्योंकि मैं अभी सॉल्यूशंस का बात करने वाला हूँ. एक एक चीज जो मैंने अभी तक डिस्कस की है. तो इफ यू आर विद मी प्लीज टाइप यस. प्लीज टाइप यस इफ यू आर विद मी. Please type yes if you are with me so far. Tribhuvan, thank you so much. Anybody else? If you are with me, please type in yes. Thank you, Dr. Komal. I know some of you have joined late, but don't worry. Certain repeat things are going to happen. So please type it yes if you are with me so far. Shall we go ahead? Thank you. Okay. So अभी बात करते हैं solutions की. तो अगर आप हॉट शावर लेते हैं तो करना क्या होता है बेसिकली. तो बेसिक सोल्यूशन है कि ये बोला जाएगा कि भाई आप गर्म पानी से बालों को धोना बंद कर दें. और क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है कि बालों में मॉइस्चर रिटेन होता है. अब इसमें जो हमें एक्शन लेना होता है कि अभी ऐसा सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट वी नो कि जब हम नहाने जाते हैं या बालों को धोने जाते हैं तो ठंडा पानी कितना टॉर्चर का काम होता है. हमें इमीडिएट शिफ्ट लाना जरा मुश्किल है. तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ठंडे पानी से आप बाल नहीं धो सकते तो एटलीस्ट आप उनको एक ल्यूक वार्म वाटर का यूज करें ताकि टेम्परेचर कम हो और ज्यादा देर तक बालों को ना धोएं. तो कम से कम टाइम में ट्राई करें बालों को वॉश करने का. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बालों को गीला रखते हैं नहाने के बाद. तो अभी इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज कि आपको एक चौड़ी कंघी का यूज करना है जिसमें बाल फंसते नहीं है. इट इज अ कॉमन थिंग.
और इसके अलावा अगर आपको ब्लो ड्रायर का यूज करना जरूरी है, मेक श्योर कि आप थर्मल स्टाइलिंग स्प्रे का भी यूज करें, उसको पहले बालों पे लगाएं, उसके बाद आप हेयर को सुखाने का काम करें। इसमें नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आप कि प्रॉपरली ड्राई करें टॉवल से, एक्सेस वाटर को निकाल दें और बालों को स्ट्रोक उनकी ग्रोथ के डायरेक्शन में दें। तो उससे क्या होगा, बालों को रगड़े नहीं, रगड़ने से क्या होगा, बाल टूटेंगे, तो उसको अवॉइड करें। एंड दैट इज हाउ वी टेक केयर ऑफ द हेयर इफ वी कीप हेयर वेट आफ्टर बाथिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइटली अगर आप बालों को बांध रहे हैं तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, अवॉइड टाइट ब्रेड्स, अवॉइड टाइट हेड्स एंड अवॉइड टाइट पॉनीटेल। और नेक्स्ट एक्शन इसमें क्या ले सकते हैं आप, ताकि आप अपने बालों को थोड़ा सा खुला छोड़ें, सोने के टाइम पे बालों को खुला छोड़ें। प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो अगेन बोलना बहुत आसान है कि भाई प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दें, बिकॉज उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, बट हमारा टेस्ट भी एक हमें जो हेल्दी फूड है उसमें उतना अच्छा मिलता नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए पहले मैं सोल्यूशन का बात करता हूँ, फिर मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट एक्शन हमें क्या लेना है। तो जो सोल्यूशन है वो यही है कि हेल्थ ऑफ द हेयर मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जैसे कि एग है, चिकन है, या फिर आपका सोयाबीन है, तो प्रोटीन रिच डाइट को खाना है। अगर आपको नए हेयर क्रिएट करने हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाने होते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि आप गूगल करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड, आपको इजिली मिल जाएगा। और अगर आपको स्कैल्प का हेल्थ मेंटेन करना है तो आपको विटामिन ए, और अगर आपको बालों को गिरने से बचाना है तो जिंक रिच फूड खाने हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसमें आप नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, ताकि आपको एकदम से अगर आप डाइट नहीं चेंज कर सकते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमेन स्लो एंड कंसिस्टेंट। तो धीरे धीरे डाइवर्जन ले और धीरे धीरे आप इन हैबिट्स पे आए और धीरे धीरे आप प्रोटीन बढ़ा दे खाने में, ओमेगा 3, विटामिन ए और विटामिन सी का इंटेक आप अपने खाने में बढ़ा सकते हैं। और अगर आप वो कैंडिडेट हैं कि हेयर स्टाइलिंग टूल्स का ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर आप हेयर कलर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप प्रोटीन हेयर स्पा करें एक हफ्ता पहले, तो उसमें डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद अमोनिया फ्री कलर आप यूज करें, जिससे आपके हेयर को डैमेज मिनिमम टू मिनिमम होगा। और इसमें जो नेक्स्ट एक्शन है, ताकि आप पैच टेस्ट कभी भी करना ना भूलें। कई बार क्या होता है कि जब हम पैच टेस्ट नहीं करते हैं तो सडन एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और हमेशा इसमें एक चीज का ये ध्यान रखना है, ताकि जब भी आप जब जब आप हेयर कलर करते हैं, पैच टेस्ट हर बार करना जरूरी है। ऐसा नहीं है ताकि आपने एक बार कर लिया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो डोंट डू दिस एंड यू हैव टू डू दिस पैच टेस्ट एवरी टाइम। और जब भी आप एक कलर चूज करते हैं बालों पे लगाने के लिए, तो जो आपको फोटो में दिखाई देता है इमेज, यानी कि जो पैकेट पे जो इमेज दिखाई देता है, जो शेड आपको दिखाई देता है, उससे एक शेड लाइटर ही आप यूज करें। अब हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि जितने भी मैंने ये सॉल्यूशंस बताए हैं वो काफी सिंपल सॉल्यूशंस हैं। इफ यू फाइंड दिस सॉल्यूशंस वेरी सिंपल, और ये जितनी भी गलतियां हम कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां, और इनके जो सॉल्यूशन है सिंपल है, तो प्लीज टाइप यस इफ यू फाइंड दिस सॉल्यूशंस वेरी सिंपल। प्लीज टाइप यस इफ यू फाइंड दिस सॉल्यूशन सिंपल। हेलो एनीवन? यस जितेंद्र, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू स्मिता। ये छोटे छोटे सिंपल सॉल्यूशंस ही मैंने आपको अभी तक बताए हैं। तो अब हम रियल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। आई होप यू कैन हियर मी। ओके, तो ये सिंपल सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं। ओके, ओके। अब जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, जो भी हम मिस्टेक करते हैं, और अगर हम ये सिंपल सॉल्यूशंस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ड्राई हेयर हमारे कम हो जाएंगे, हमारे रफ हेयर कम हो जाएंगे, हमारे थिन हेयर भी रिड्यूस हो जाएंगे और हमें पैची हेयर भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस खुद से कर सकते हैं बिना हेयर एक्सपर्ट के पास विजिट किए। इफ यू फाइंड दिस स्लाइड यूजफुल, प्लीज टाइप यूजफुल।
Please type useful if you find this slide useful. How come everybody is lazy today? Thank you, Dr. Kirti. Thank you, Tribhuvan. Thank you, Smita. Thank you, Dr. Komal. So these were the simple solutions, and simple solution से हमें 4 बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है. ड्राई हेयर, रफ हेयर, थिन हेयर और पैची हेयर. ये हमारे कर्मों की सजा है जिसकी वजह से हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं. तो अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक हम अवॉइड करेंगे तो हमारी 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा. अब मैं बाकी की प्रॉब्लम्स का बात करूंगा कि हमें उसमें क्या करना होता है. तो इफ यू आर विद मी प्लीज टाइप इन यस. Please type in yes if you are with me. Thank you. I know most of you have joined late, so don't worry. Now things will come up. Thank you. Thank you. Okay. तो अभी पहले मैं इससे पहले कि बाकी की 5 कंडीशंस पे जाऊं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और बाल लोगों के काफी बड़े हो गए हैं, स्पेशली मैन. कि अगर वो दाढ़ी रखते हैं या मूछें रखते हैं तो उनको कैसे उसको वर्कआउट करना है, तो उसके ऊपर बात करते हैं. अभी क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है, बाइक राइडिंग नहीं है, कार राइडिंग नहीं है, बस और ट्रेन का ट्रेवलिंग ही नहीं है. तो हर चीज कंट्रोल में है और हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा है. तो हमें कौन सी चीज पे कैसे वर्कआउट करना है, लेट मी टेक इट अहेड. तो अब ये स्लाइड जो है एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स में इशू की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप लॉकडाउन में फंसे हैं तो आपको कैसा केयर लेना है, और वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ओके, ये देखिए फेशियल हेयर स्टाइल की बात हो रही है स्पेशली मेन के लिए. तो इफ देयर आर मेन इन द ग्रुप, लेट मी सी, यस त्रिभुवन एंड जितेंद्र. ओके, तो इस टाइप के जो ग्रीन मैंने में कवर किया हुआ है वो एक्सेप्टेड हेयर स्टाइल या बियर्ड स्टाइल है. बियर्ड स्टाइल को जरा ध्यान से देखिए, मूंछों के स्टाइल को ध्यान से देखिए. देखिए यहाँ पे पूरा मास्क फेस को कवर करता है. लेकिन अगर हमारी पूरी दाढ़ी है, जो रेड में मैंने किया हुआ है, अगर पूरी दाढ़ी है तो वहां पे मास्क प्रॉपरली फिट नहीं होगा. तो इसलिए जो रेड में किया हुआ है वो एक्सेप्टेड स्टाइल नहीं है, और जो ग्रीन में है वो एक एक्सेप्टेड स्टाइल है बियर्ड का, या यहाँ पे जो बूटी रखते हैं उसका, या फिर साइड विस्कर जो हम साइड में रखते हैं. और इवन इंग्लिश मुस्टैच का भी बात करें तो जो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ होती है तो वहां पे भी मास्क प्रॉपरली फिट नहीं होगा. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो सीडीसी ने हमें इशू की है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी देखिए रिकमेंडेड स्टाइल क्या है, क्लीन शेवन और नॉट रिकमेंडेड फुल बियर्ड इज नॉट रिकमेंडेड, साइड विस्कर, सोल पैच, हैंडल बार मुस्टैचेस. एंड ये इसलिए है क्योंकि आपका मास्क फेस के ऊपर प्रॉपरली फिट बैठता है. और जबकि नॉन रिकमेंडेड स्टाइल जो है फुल बियर्ड, मटन चॉप्स, एक्सटेंडेड गोटी, इंग्लिश मुस्टैच अबव, तो ये चीजें आपको रिकमेंडेड नहीं है. ओके, अब बात करते हैं 5 कॉमन हेयर कंडीशंस की वेयर यू शुड विजिट एन हेयर केयर एक्सपर्ट. तो अगर आप अभी तक मेरे साथ में हैं प्लीज टाइप इन यस. इफ यू आर विद मी प्लीज टाइप यस. सॉरी टू कीप यू अवेक एवरी टाइम. Please type in yes. Thank you, Dr. Kirti. Thank you, Komal. Okay. Thank you, Tribhuvan. Okay. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. ओके, 5 हेयर कंडीशंस जहां पर हेयर केयर को एक्सपर्ट को दिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए. एक है फ्रीक्वेंट डैंड्रफ. हालांकि इसका मैं सॉल्यूशंस भी देने वाला हूं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये घरेलू नुस्खों से इसका इलाज नहीं होने वाला है. अगर आपको फ्रीक्वेंट डैंड्रफ होता है या फिर कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपको कैंसर, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर के लिए आप दवाई ले रहे हैं, या फिर आपका हेयर लॉस ऐसा है जो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज से रिलेटेड है, या फिर आपने एलोपैथिक मेडिसिन ट्राई की है लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले हैं, और अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो भी आपको खुद से कुछ एक्टिविटीज, खुद से दवाई नहीं लेनी है. यू मस्ट विजिट एन हेयर केयर एक्सपर्ट. और अगर आपका हेयर फॉल का रीजन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यू नीड एन हेयर केयर एक्सपर्ट. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स टेक वन बाय वन. अगर डेंड्रफ होता है कैसे, फ्लेक्स होते हैं स्कैल्प के ऊपर, वो गिरते रहते हैं, व्हाइट व्हाइट और येलोइश थोड़े से होते हैं. और ये होता भी है क्योंकि हमारे स्कैल्प के अंदर, जैसा मैंने पहले डायग्राम बताया था कि हेयर के अंदर एक सीबेशियस ग्लैंड होती
होती है जो ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है, और वो ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है क्योंकि उसकी वजह से हमारा हेयर शाइनी होते हैं। बट किसी किसी में अगर वो हेयर फॉल किसी किसी में अगर वो ऑयल ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करता है तो वो ड्राई हो जाता है और फ्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर फ्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं तो वो फ्लेक्स क्या होते हैं, कई बार फेस पे आते हैं, तो बालों के साथ साथ हमारे फेस को भी डैमेज करते हैं। फेस पे भी हमारे एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वन वर्ड आंसर इज एंटी फंगल सॉल्यूशन है। तो आप एंटी फंगल सॉल्यूशन शैम्पू लगा सकते हैं, बट मेक श्योर यू विजिट एन हेयर केयर एक्सपर्ट, तो ताकि आपको राइट एंटी फंगल सॉल्यूशन या शैम्पू का पता चले। इसके अलावा दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि डोंट डिसाइड बाय योरसेल्फ एंड डोंट गो बाय द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के भरोसे पे आपको काम नहीं करना है। एक दूसरा फ्रीक्वेंट डैंड्रफ का एक सॉल्यूशन है कि आप अपने बालों को छोटा कर सकते हैं, जिससे डैंड्रफ के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो अगेन डेफिनेटली इट इज एन सीरियस इशू। तो आपको सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, ताकि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उस जो आपके पास दवाई दी गई है अगर उसकी वजह से हेयर फॉल इशू हो रहा है तो आपको करना क्या है, ताकि आपको गूगल करना है। अगर उसका हेयर फॉल एज अ साइड इफेक्ट है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए ताकि इसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है तो क्या आप मुझे रिप्लेस करके दे सकते हैं कोई दवाई। अगर आपको वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता है देन व्हाट यू कैन डू, आप अपनी दवाई का नाम मुझे एसएमएस करिए, उसका हेयर फॉल एज अ साइड इफेक्ट है, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में हेयर फॉल काफी कॉमन है। अगर किसी किसी में प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेरली एंड्रोजन नहीं होता है, तो जिसमें हेयर फॉलिकल श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं और उसमें हेयर लॉस आ जाता है। बट प्रेगनेंसी के हेयर फॉल को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिलीवरी के बाद 3 to 4 मंथ्स में ये नॉर्मल पे आ जाता है। और अगर मेनोपॉज का इशू है तो वहां पे आपको डेफिनेटली जो आपका घर पे जो सॉल्यूशन हो सकता है कि आप स्कैल्प का मसाज करना शुरू कर सकते हैं और डाइट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डाइट अगर आप इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कम होगा, बट मेक श्योर इट इज अगेन अ सीरियस कंडीशन मेनोपॉज में हेयर फॉल का होना, तो मेक श्योर यू विजिट एन हेयर केयर एक्सपर्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगर फिजिकल और मेंटल शॉक होता है तो हेयर के अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हेयर फॉल इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो हेयर फॉल इशू किसी किसी लोगों में ये खुशखबरी भी है ताकि जब तक हम स्ट्रेस्ड हैं तब तक हमें हेयर फॉल होगा, और जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारा हेयर फॉल भी बंद हो सकता है। इसमें आप अपने लेवल पे क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं, ताकि आपके पास अभी टाइम है, आप डिस्ट्रेस करिए अपने आप को अलग अलग नए नए हेयर स्टाइल्स का एक्सपेरिमेंट करके। तो जब आप नए नए हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ऊपर, आपका मूड भी अच्छा होगा और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि हेयर फॉल का रीजन हमें नहीं पता, लेकिन 99% ये हेरेडिटरी हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या है कि जब आप हेयर केयर एक्सपर्ट के पास जाते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली एक सॉल्यूशन मिलता है। कुछ नेक्स्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है या दूसरी हेल्थ कंडीशंस का मॉनिटरिंग किया जा सकता है। आप अपने लेवल पे इसका जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ताकि अगर आपके बाल गिर रहे हैं बी हैप्पी विद दैट, कि आज के टाइम में टकला होना भी एक फैशन है जो शायद आने वाले टाइम में और ज्यादा फैशनेबल चॉइस हो सकता है। और अगर इसका कॉन्क्रीट सॉल्यूशन का मैं बात करूं तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस केस में आप दैट्स ऑल। तो अभी इफ यू आर क्लियर टिल नाउ प्लीज टाइप इन क्लियर, प्लीज टाइप इन क्लियर इफ यू आर क्लियर टिल नाउ। I know I'm going little fast today. If you're clear, please type clear. Thank you, Komal. Thank you, Dr. Kirti. Anybody else? If you are not clear, please type not clear. If you are clear, please type clear. Okay, everybody is clear. Thank you, Jitendra. Thank you, Triphuvan. Okay, this is an action summary where there are 3 questions that you need to have. वन इज हेयर फॉल रीजन आपका क्या है वो आपको पता है। कॉमन मिस्टेक्स का जो मैंने शुरू में बात किया था, हॉट हेयर बाद व्हाइट हेयर अगर आप रखते हैं, टाइटली ब्रेड्स आप रखते हैं, प्रोसेस्ड फूड आप खाते हैं, स्ट्रेस है या आपको फ्रीक्वेंट डैंड्रफ है या फिर आप कलर एंड केमिकल
का यूज करते हैं. तो what action or what you need to stop doing, now you know it, right? So if you know what you need to stop it, तो what you can do, जो भी आपका हेयर फॉल का रीजन आप उसको लिखें और वहां पर लिखें. अभी देखिए हमारे साइकिल में ये होता है, हाँ यार हेयर फॉल है, गर्म पानी से नहाते हैं इसलिए मेरा हेयर फॉल हो रहा है, गर्म पानी से नहीं नहाना है. लिखने में बड़ा सिंपल सा स्टेप लगता है, but when you actually write it, it goes into your subconscious mind and you start taking action and then you realize what you need to start doing. Then you will start using your own water. So if this solution is helpful, please type helpful. So writing definitely necessary है, please type helpful if it is helpful to you. Thank you. Thank you. Shall we move ahead? Okay. So this is the same slide. Now I have kept it empty. तो मैंने इसके अंदर डेट और डे भी ऐड कर दिया है ताकि आपको ये अलर्ट रहे कि मैंने कौन सी डेट को डिसाइड किया था, बाकी मेरा हेयर फॉल का रीजन क्या है, मुझे क्या स्टॉप करना है करना और मुझे क्या शुरू करना है करना. Okay. What hair experts don't tell you. So this is very important slide and इसका सिंपल आंसर ये है कि हेयर केयर बहुत आसान है, लेकिन और इसमें हम अपने सिंपल स्टेप लेके हेयर को कंट्रोल में रख सकते हैं, हेयर फॉल से बच सकते हैं, ड्राई हेयर, स्प्लिट हेयर, पैची हेयर से बचा जा सकता है. बट हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूव नहीं करते हैं और हम एक डेड एंड पे आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम हेयर केयर एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप ये छोटे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करें. डेफिनेटली आपको हेयर केयर एक्सपर्ट की लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी. Now let's move on to the next thing, कि 5 simple steps to stop hair fall and to have healthy hair. So let's begin and again it is all related about our habits. तो 21 days लगते हैं एक हैबिट को क्रिएट करने के लिए, तो हम अभी एक स्टेप की बात करेंगे और उसके ऊपर जाएंगे. पहला, avoid 5 common mistakes that we discussed. राइट, जो भी 5 मिस्टेक की बात की, हॉट एयर में नहीं नहाना, हॉट पानी में नहीं नहाना है, बालों को गीला नहीं रखना है, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है और हमें हेयर कलर्स को अवॉइड करना है और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हमें हेयर स्पा पे फोकस करना है. तो ये 3-4 चीजें जो मैंने शुरू में बताई, 5 चीजें उनको अवॉइड करना है. डोंट डिले टू विजिट एन हेयर केयर एक्सपर्ट अगर आपको हेयर की वो कंडीशन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है आपके हेयर की, तो उसमें आपको हेयर केयर एक्सपर्ट के पास विजिट करना है. एंड द नेक्स्ट इज कीप योर हेयर क्लीन एंड वॉश देम एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एंड ऑयल योर हेयर रेगुलरली. अब ऑयलिंग का जो फिलॉसफी है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. अगर आपके बाल ड्राई है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ऑयलिंग करना है, मे बी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप कर सकते हैं. और अगर आपके बाल नेचुरली ऑयली है देन वंस अ वीक इज आल्सो फाइन. और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ हैबिट कि हम ऑयलिंग करते हैं तो ज्यादा करके इवनिंग में करते हैं, शाम को करते हैं. मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उसको सुबह की शिफ्ट में ले आए ताकि जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो सुबह में वो ऑयलिंग वगैरह करें, क्योंकि माइंड भी फ्रेश होता है और ऑयल का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. और इसके अलावा जो भी रेजिड्यूल होता है ऑयल का वो हमारे बिस्तर पे भी नहीं लगेगा. तो ट्राई करें कि इसको सुबह में शिफ्ट करें, ऑयली हेयर को ऑयलिंग करना. इसके बाद आते हैं कि चूज राइट शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नहीं जाना है. तो आपको राइट शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम का यूज करना है. तो आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट सेशंस वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट राइट शैम्पू का सिलेक्शन कैसे करें, राइट कंडीशनर का सिलेक्शन कैसे करें और राइट सीरम का सिलेक्शन हम कैसे करें. एंड द लास्ट इज चूज राइट डाइट फॉर यू. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया भी था कि राइट डाइट हमारे लिए क्या है. अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ऐसा फूड खाना है जिसके अंदर जिंक बहुत ज्यादा है. तो जिंक रिच फूड्स हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं. तो जिंक रिच फूड का आपको कंजप्शन ज्यादा करना है. अगर आपको हेयर और स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करना है, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर हेयर आते हैं, तो अगर स्कैल्प की ही हेल्थ मेंटेन नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे नहीं होंगे. तो वहां पर आप विटामिन सी और विटामिन ए रिच फूड
खाएं, और इसके साथ साथ अगर आप नए बालों को क्रिएट करना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच फूड खाना जरूरी है। सो व्हेन टू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, सॉरी आई forgot to ask, if you are with me till now, please type it's clear. Please type clear if it is clear till now. Thank you, Dr. Kirti. Thank you, Chitendra. Thank you, Dr. Komal. Okay, so it's clear. Okay, when to expect results? Okay, hair cycle is of 6 weeks, so it's a natural process. इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है, जहां पर मैंने 21 days हैबिट्स का लिखा था, तो आइडियली इट शुड बी फॉर 6 weeks। तो 6 weeks लगते हैं हेयर में रिजल्ट्स आने के लिए, चाहे आप खुद से ट्रीटमेंट करें या फिर आप डॉक्टर और हेयर केयर एक्सपर्ट्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लें। तो 6 weeks का विंडो पीरियड आपको रखना है। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन सीक अदर सॉल्यूशंस। नाउ देयर इज अ फ्री गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू, ताकि हमारे पास 5 फ्री कॉस्मेटिक हेयर कूपन्स हैं जो कोरोना लॉकडाउन के बाद दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो कूपन मिले, तो प्लीज टाइप माई फ्री हेयर कूपन एंड व्हाट्सएप ऑन 8850587701। तो और इसके साथ साथ आपको एक्शन टेम्पलेट पे भी काम करना है जो आपको दी गई है। एंड यस, नाउ व्हिच टॉपिक यू वांट मी टू टेक नेक्स्ट? तो अब हम थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन था जहां पर हम हेयर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है, प्लीज टाइप करें ताकि अगली बार हम उस टॉपिक को ले पाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, तो जो भी टॉपिक आप लेना चाहते हैं तो मुझे आप वहाँ पे व्हाट्सएप करें ताकि हम इसके ऊपर और काम कर सकें, और उसके बाद उस टॉपिक को लिया जाएगा। तो मेजोरिटी के हिसाब से जाएंगे। तो आपको यहाँ अगर टाइप नहीं कर सकते तो प्लीज टाइप इन माय व्हाट्सएप नंबर। Okay, now I have a request to make. See, we have a target of 1 lakh subscriber by December 2020. Last month we had 5,000 subscriber, and इस महीने में हमने 1,000 subscriber अचीव किया है। तो now we have almost 6,000 subscriber. तो I have a request कि जैसे ही आप सेशन से लॉग आउट करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वहां पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है #AskAnythingFromDrMunish, जहां पर हेयर केयर के आपको वीडियो मिलेंगे, जहां पे स्किन केयर के आपको वीडियो मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो कोर्सेज है, कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और स्पा के कोर्सेज, तो सबके वीडियोस वहां पर दिए हुए हैं जहां पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। तो प्लीज टू वॉच दिस प्लेलिस्ट #AskAnythingFromDrMunish. So tomorrow webinar is going to be on career scope in cosmetology. So if you want to become a cosmetologist, then definitely do share it with your friends as well. If you know someone who want to become a cosmetologist, तो उसमें करियर स्कोप के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट आता है, और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसका स्कोप क्या है, कंपटीशन को कैसे बीट करना है एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और क्या ये राइट टाइम है एक कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक को शुरू करने का। तो उसमें ये टॉपिक भी रहने वाले हैं। तो इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ इंक्लिनेशन इनटू दिस, प्लीज जॉइन मी टुमारो एट 2 PM. Thank you, action takers, and thank you. Your journey begins now. So thank you for joining in, and I am really grateful to you for your presence. Thank you, everyone. So I'm going to end this session. Thanks once again for joining in.